Good noon, dear students. After the first lecture that I had taken, and I had given you information regarding the conformations of ethane and butane in a quick way, and I had also informed you regarding conformations of cyclohexane, and I had last informed you that the order of stability of the chair form is the highest, then comes the twist boat form, less stable is the boat form, and the least stable is the half chair form. And I told you that now we'll be taking up the equatorial and axial bonds in cyclohexane. See, there are two kinds of bonds that are observed in cyclohexane. The equatorial bond, the hydrogens that are in the plane of the ring are supposed to lie on an imaginary equator above the ring, about the ring, that is above and below the ring, and hence the bonds holding these hydrogens are called equatorial hydrogens. So as we know, if we draw the earth, the equator is at the center like this. So all the bonds lying almost parallel to this equator of the earth are termed as equatorial bonds. You know that we draw cyclohexane in this manner, as I have drawn it here already. So in this, we have seen that if we consider this as one of the planes, probably this as the equator, so all the lines, all the bonds, you can see one is going downwards, the other upwards, then other downwards, then other upwards, then downwards, and then upwards. So these are the equatorial bonds. These are the hydrogens that are attached to the cyclohexane ring. तो हमारे हर कार्बन पे दो हाइड्रोजन्स हैं. ऑफ दीज टू हाइड्रोजन्स, one hydrogen each is attached to the equatorial bond. The rest 6 of the hydrogens are attached to the cyclohexane ring by the axial bond. अब axial bond आप देखिएगा, axial bonds वो हैं जहाँ पे कि हमने एक plane, we have taken a plane perpendicular to the ring and those bonds are either parallel to the ring above or below. ठीक है, तो आप जब adjacent carbons को लेंगे तो the first carbon if it is having the axial bond towards upwards, then the next axial bond is downwards. Then in the next carbon it is upwards, you can see this is upwards. Then in the next carbon it is downwards, again it's upwards, and then it is downwards. So alternatively they are up and down. अगर हम साइक्लोहेक्सेन की रिंग को कंसिडर करें, मैं आपको फिर से ड्रॉ करके बताती हूँ. अगर हम साइक्लोहेक्सेन की रिंग को ड्रॉ करें तो इस साइक्लोहेक्सेन की रिंग में जो 12 कार्बन हाइड्रोजन्स जुड़े हुए होंगे, उन 12 हाइड्रोजन्स की जो पोजीशन है, दे आर आइदर अबव और बिलो द रिंग. एंड क्लियरली स्पीकिंग, 6 हाइड्रोजन्स आर अबव द रिंग एंड 6 आर बिलो द रिंग. उन 6 हाइड्रोजन में से 3 एक्शियल हैं जो अबव द रिंग हैं और 3 एक्शियल बिलो द रिंग हैं, और 3 इक्वेटोरियल अबव द रिंग हैं और 3 इक्वेटोरियल बिलो द रिंग हैं. आप खुद गिन लीजिए, ये हम प्लेन के नीचे की तरफ गिनेंगे. यहाँ हमने बॉन्ड इस तरीके से नहीं बनाया कि इसके नीचे जा रहा है, लेकिन ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है और ये नीचे जा रहा है. तो 3 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन जो कि रिंग के नीचे की तरफ हैं, और 3 ही इक्वेटोरियल हाइड्रोजन जो रिंग के ऊपर की तरफ जा रहे हैं. यानी कि अगर हमने एक प्लेन डिवाइड कर रखी है तो हम माने कि प्लेन के ऊपर की तरफ जाने वाले 3 हाइड्रोजन्स हैं और प्लेन के नीचे की तरफ जाने वाले 3 हाइड्रोजन्स हैं. ये तो हो गए इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स. एक्शियल हाइड्रोजन्स में भी हम देखें कि एक ऊपर की तरफ, ये दूसरा ऊपर की तरफ और तीसरा ऊपर की तरफ, ये एक नीचे की तरफ, ये दूसरा नीचे की तरफ और तीसरा नीचे की तरफ. सो इन टोटल द 12 हाइड्रोजन्स ऑफ विच 6 आर अबव द प्लेन ऑफ द रिंग एंड 6 आर बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग. एंड यू कैन सी दैट इट इज़ ऑलवेज ऑल्टरनेट. एक कार्बन पे अगर एक ऊपर की तरफ है तो नेक्स्ट वाला नीचे की तरफ है. यहाँ भी आप देखिएगा, यहाँ इक्वेटोरियल में फर्स्ट इज बिलो द रिंग, बिलो तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ये नीचे की तरफ, फिर ये ऊपर की तरफ, फिर ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ. इन टोटल द इक्वेटोरियल एंड एक्शियल बॉन्ड्स व्हेन ड्रॉन इन द मॉलिक्यूल, आप ये देख रहे हैं इस मॉलिक्यूल पे जब आप ड्रॉ करेंगे तो मैंने आपको एक्शियल बॉन्ड सारे रेड कलर से दिखा रखे हैं एंड इक्वेटोरियल बाय मीन्स ऑफ द ब्लू बॉन्ड्स. So all are being shown and all the 12 hydrogens are being shown on cyclohexane. This is the case with the chair form of cyclohexane. In the meantime, this is the definition. Then we go for axial bonds. कि bonds holding hydrogens above or below the plane are parallel to axis perpendicular to the plane of the ring and hence known as axial bonds. ठीक है, ये आपके जो बॉन्ड्स हैं ये आपके बोट फॉर्म है. बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोप्रोपेन जो है, इस बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोप्रोपेन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि इसमें जो
टॉप के फर्स्ट और फोर्थ कार्बन है, दिस कार्बन एंड द फोर्थ कार्बन, इन कार्बन पे जो बॉन्ड्स लगे हुए होते हैं, ये जो दो बॉन्ड्स हैं इनको हम फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स कहते हैं, क्योंकि ये फ्लैगपोल की तरह लगे हुए होते हैं और ये आपस में टकराते हैं. दिस इज वन रीजन फॉर द इंस्टेबिलिटी इन बोथ फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन. ये आपके बोस्पिरेट हाइड्रोजन्स कहलाते हैं और बाकी नॉर्मल आपके इक्वेटोरियल और एक्शियल हाइड्रोजन्स कहलाते हैं, और ये एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जिसकी वजह से भी इनमें इंस्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है. Now the cyclohexane exists in two chair conformations. The two chair conformations are shown here. One chair conformation is this one and the other is this one. If we closely go through these two conformations, आप अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर एक कार्बन को ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है. ये इस चीज़ को बताने की कोशिश की गई है कि इसमें जो बॉन्ड है, आप सिर्फ इसके बॉन्ड पे ध्यान दीजिएगा. द बॉन्ड हियर इन रेड कलर इज द एक्शियल बॉन्ड. यू कैन सी दिस इज द एक्शियल बॉन्ड, दिस एक्शियल बॉन्ड एंड दिस इज योर इक्वेटोरियल बॉन्ड. हर एक कार्बन पे एक एक्शियल अगर ऊपर की तरफ है तो इक्वेटोरियल नीचे की तरफ होगा. फिर यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे ये इक्वेटोरियल अगर ऊपर की तरफ है तो एक्शियल नीचे की तरफ है. तो दोनों कार्बन, एक कार्बन पे हमेशा दोनों में से एक एक्शियल होगा. एक अगर ऊपर की तरफ है तो दूसरा नीचे वाली लेयर की तरफ या नीचे वाली सरफेस की तरफ देखने को मिलेगा. नाउ दीज टू कॉन्फर्मेशंस आर बीइंग ऑब्जर्व्ड इन दिस केस. इस बात को हम इस प्रकार से समझा सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमने इस वाले को डॉटेड लिया है तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि इस डॉट पे ये जो है एक्शियल इज ऑन दी टॉप साइड, ऊपर की तरफ ही है. जब हम फ्लिप कराते हैं तो हम ये मान के चलें कि हम इस कार्बन को नीचे की तरफ ला रहे हैं. जब हम फ्लिप करके इस कोने को खींच के नीचे ले आएंगे और इस कोने को खींच के ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ ये एरो से, तो उससे आपका जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा. नाउ इफ़ यू सी, इट इज़ नॉट द मियर मूवमेंट ऑफ द कार्बन्स इन द सिस्टम, रादर इन कार्बन्स के साथ जो ये हाइड्रोजन कंटेनिंग बॉन्ड्स हैं ये भी शिफ्ट होते हैं, और उस शिफ्ट का नतीजा है कि जो एक्शियल बॉन्ड था वो एक्शियल बॉन्ड अब इक्वेटोरियल हो गया है. आप देख रहे हैं कि ये जो एक्शियल बॉन्ड था, दिस एक्शियल बॉन्ड हैज़ नाउ बिकम इक्वेटोरियल, एंड दिस गोज सेम विद ऑल द बॉन्ड्स इन ऑल द अदर कार्बन एटम्स. दिस गोज सेम विद ऑल द बॉन्ड्स इन ऑल अदर कार्बन एटम्स. मैंने आपको सिर्फ एक को स्पेसिफिकली ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कराया है, और उसका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आपका जो एक्शियल बॉन्ड है वो एक्शियल बॉन्ड और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड, इस एक चेंज को देख के आपको ये बात समझ में आ जाए. नाउ वंस वी आर क्लियर दैट देर आर टू कॉन्फर्मेशंस. अब फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि साइक्लोहेक्सेन के ये दोनों कॉन्फर्मेशंस हमें कोई फ़र्क नहीं दिखाते हैं, बिकॉज ऑल द कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स आर सिमिलर. तो इन दोनों कॉन्फर्मेशंस को देखने पर आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा. नाउ लेट्स डू वन थिंग टू शो द डिफरेंस. वी टेक अप मोनो सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स. इसमें हमने एक कार्बन पे जो एक्शियल हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन की जगह हमने मिथाइल लगा दिया. Now, as soon as you put up a methyl group, now the difference shows up. This methyl group is in interaction with these two hydrogens at 3 and 3' positions from the methyl on the first carbon. ये जो तीनों हैं इसकी वजह से 1,3 डायएक्सियल इंट्रैक्शंस होते हैं, और इन 1,3 डायएक्सियल इंट्रैक्शंस की वजह से ये अनस्टेबल होता है. और इसका जो दूसरा कॉन्फर्मेशन है जिसमें कि ये फ्लिप करके इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाता है, इस कॉन्फर्मेशन में मिथाइल का किसी और बॉन्ड्स के साथ इंट्रैक्शन नहीं है. मिथाइल ग्रुप एट द इक्वेटोरियल पोजीशन एंड हेंस देयर आर नो 1,3 डायएक्सियल इंट्रैक्शंस एंड नो क्राउडिंग अकर्स. एंड एज अ रिजल्ट अगर आप एरोज भी देखेंगे तो ये रिवर्सिबली दोनों एक दूसरे में फ्लिप होते रहते हैं. लेकिन इसमें बिकॉज ऑफ दिस मिथाइल एट दिस फर्स्ट कार्बन यू कैन सी दैट इट प्रिफर्स द मिथाइल साइक्लोहेक्सेन विद मिथाइल एट द इक्वेटोरियल पोजीशन रादर देन एट द एक्सियल पोजीशन, क्योंकि इसमें ये 1,3 डायएक्सियल इंट्रैक्शंस हैं, ये आपस में टकराते हैं, स्टेरिक इंट्रैक्शंस होती हैं, एंड इट प्रिफर्स टू रिमेन इन दिस फॉर्म. ठीक है, तो ये जो चीज़ है इससे एक जनरलाइजेशन आया कि इन साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स एनी ग्रुप हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई एन इक्वेटोरियल पोजीशन. वो प्रिफर करेगा कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहे रादर देन एक्सियल पोजीशन. इसी का एक और उदाहरण है यहाँ पर, जहाँ पे कि आपने इक्वेटोरियल टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन लिया. इसमें 100% आपको ये इसी फॉर्म में मिलेगा जहाँ पे कि जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही मिलेगा. कारण ये कि इतना बड़ा ग्रुप है कि ये एक्सियल पोजीशन पे रहना अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा. तो ये जो आपने रिवर्सिबिलिटी देखी इसके चांसेस ना के बराबर हैं. आप ये मान के चलेंगे कि इस टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन के केस में ये 100% इसी फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में आएगा ही नहीं. ठीक है, तो वी हैव डन विद द axial and equatorial bonds of hydrogen. We have done with the flipping of
the conformations, the two conformations possible in case of cyclohexane chair form, and we have talked about the monosubstituted cyclohexane. In the next class, we'll be talking about the disubstituted cyclohexanes. Thank you.